morning, my dear student. In last videos, we people have seen movement in plants, right? We have seen your growth dependent and growth independent movement. Yes or no? Yes, we have seen trophic movement and your nastic movement. Am I clear? So I hope ये आपने अच्छे से आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है and you understood this movements really very well. Okay. In your textbook, activity 7.2 is given, I guess, right? Where you have to take a flask, right? You have to fill that flask with water. ऊपर एक mesh रखना है and on the same you are going to keep and germinated plant. आपको कोई germinated plant रखना है. Okay, we are going to keep the same under a cardboard which is open from one side only. Which is open from one side only, and then what you have to do? You have to keep that cardboard, right, in such a way that open part is exposed to light. Open part जो है, it is exposed to light, right? After 2 to 3 days, what you people are going to notice is your phototrophic movement. Yes or no? What is phototrophic movement? The movement which occurs in direction of light. तो आपको वहां पे दिखेगा जो shoot है वो bend हो गया होगा. Am I clear? So this is activity which is mentioned in our NCERT textbook. एक बार आप पढ़ लो, डायग्राम देख लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी. Okay, now dear student, if you're talking about this movements, right? If we are talking about this movements, तो ये movement either fast होती है or this movement are slow. Yes or no? One such example, if I want to plot, आपका जो sensitive plant है, sensitive plant in the sense your कौन सा वाला? Touch me not plant, Mimosa pudica. Yes or no? That is your nastic movement, growth independent movement. उसको आप touch करो. Yes or no? उसको आप टच करो तो immediately it show response. हाँ या ना? हाँ. Whereas at the very same time, if we look at sunflower plant, it changes its direction, right? It responses to day and night. Yes or no? ये जो movement है वो बहुत ही slow होती है. Yes or no? Yes. So these are two kind of movement. मैंने आपको बोला एक बहुत fast है, एक बहुत slow है. Even if we are talking about animals, जैसे आप आपकी ही बात कर लो, right? तो if you are talking about your fingers, it grows in controlled manner. It grows in controlled manner. Yes or no? It do not grow haphazardly. ऐसे ही बाहर निकलती है कहीं से? नहीं निकलती. आपकी आईज यहाँ पे ही होती है, यहाँ पे होती है क्या? नहीं होते. आपके लिप्स यहाँ पे ही है, यहाँ पे होते हैं क्या? नहीं होते. सो व्हाट आई मीन टू से, जो ग्रोथ होता है, ओके, वो कैसा होता है? वो कैसी मूवमेंट होती है? कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है. एम आई क्लियर? To be more specific, if I am talking about your growth related movement, तो बहुत ही slow होती है. वो बहुत ही कैसी होती है? Slow होती है. Am I clear? So my dear student, what I am trying to say is that जो आपकी controlled movement होती है, it can be fast or it can be slow. Okay. So what I am writing, जो controlled movement है, okay, जो controlled movement है, जैसे कि you people are having only 5 fingers. Yes or no? Yes. You do not have any extra. If you are having extra, that is a kind of abnormality, I can say. ठीक है. तो देखो भाई यहाँ पे ये जो controlled movement है, मैंने आपको बोला it may occurs very fast or it is slow. Okay, my dear student, if the movement is to be fast, if you require a quick movement, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? आपकी नर्वस सिस्टम जो क्या सेंड करे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यू कैन से इट एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. यस और नो? यस. लेकिन बच्चों सुनो ध्यान से, ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है. ठीक है, वैसे मूवमेंट तो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही क्विक होती है, लेकिन इट involves
those cells which are directly connected to nervous tissue. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसको पहुंचती है? only to those cells, only to those cells who are associated with nervous tissue. ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, नर्वस टिश्यू बोला मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट योर एनिमल्स, तो आप अपनी ही बात करो. हमारे बॉडी के सारे जो सेल्स होते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ न्यूरॉन्स. आई मीन टू से दे आर नॉट कनेक्टेड विथ नर्वस टिश्यू. तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं पहुंच पाएगी, वहां पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं पहुंच सकती, राइट? सिंस दे आर नॉट connected with neurons, they are not connected with these tissues. Am I clear? ये पहला ड्रॉबैक हो गया. Second drawback is that once impulse or signal, you can say, is generated, right? एक बार एक impulse generate हो गया तो it will take some time. It will take some time, कुछ टाइम लेगा वो to reset and generate new impulse. Are you people getting my point? Yes or no? वैसे ये मूवमेंट कैसी है? फास्ट है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स है. पहला मैंने बोला ऑल सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद नर्वस टिश्यू. दूसरा मैंने आपको ये बोला एक इम्पल्स जनरेट हो गई टिल टेक सम टाइम टू रीसेट, वापस से वो इम्पल्स जनरेट करेगा. मतलब दो इम्पल्स के बीच में क्या होती है? गैप होती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको सेकेंड पॉइंट ये बोला, वंस इम्पल्स इज जनरेटेड, एक बार एक इम्पल्स जनरेट हुई, एक सिग्नल जनरेट हुआ, तो न्यूरॉन्स में कुछ चेंजेस होगा. ओके, इट रीसेट, वो रीसेट होगा. ठीक है, दैट what is the mechanism which is involved, that you are going to understand in class 11. अभी के लिए आप इतना याद रखो, न्यूरॉन्स में जो चेंजेस आए हैं इम्पल्स जनरेशन के बाद, वो वापस से ओरिजिनल पे आएंगे, मतलब वो रीसेट हो गए. Only then other impulses generated. Am I clear? So my dear students, these are some of limitation, you can say, drawback you can say, of your electrical impulse generated by your nervous tissue. So of course, organisms must have some another means. Organism must have some another means for transforming information, transferring information, yes or no? And that is what I mean by through chemicals. That is what I mean by through chemicals. Am I clear? Chemicals. In the sense, we are talking about your hormones. What we are talking about we are talking about your hormones. These chemicals are present in both plants as well as animals. Plants में इसको कहा जाता है, what did he say? It is said as phytohormone, or they are said as plant growth regulators. PGR, you people have to write the full form, plant growth regulator. Whereas in animal it is said as hormones. उसको क्या कहा जाता है बच्चों? Hormone कहा जाता है. So dear student, in this video we are going to focus on plant portion. This we are going to understand in next video. हम ये वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? Your plant growth regulators, phytohormones और chemicals which are present in plant. ठीक है, ये बात समझ में आई? ये फास्ट है, ये स्लो है, राइट? ये यहाँ पे ये ऑल सेल्स पे नहीं पहुंच सकता. इट टेक सम टाइम टू रीसेट. इसके लिए एनिमल्स एंड प्लांट यूजेस सम अदर वे टू कम्युनिकेट, एंड दैट इज बाय केमिकल्स. दैट इज बाय केमिकल्स. एम आई क्लियर? ये प्रोसेस कैसी होती है बच्चों? स्लो होती है. एम आई क्लियर? सो क्या होता है इसमें जनरली, ये कोई सेल है, राइट? दिस इज योर स्टिम्युलेटेड सेल.
ठीक है, मतलब उसको कुछ स्टिमुलाई मिला है, तो ये सेल क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा. दिस इज सम chemical, right? This chemical is detected by other cells, and thus message is passed from one cell to another to third, and so on. Are you getting my point? Yes or no? Am I clear? कोई मुझे कुछ आके बताए. मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, उसके फ्रेंड, वो मेरे फ्रेंड ने उसके फ्रेंड को बोला, सेम लाइक दैट चेन, देयर अकर्स चेन. एम आई क्लियर? सो ये क्या होता है बच्चों, आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, दे आर रिलीज्ड इन वेरी स्मॉल प्रपोर्शन. ओके, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, दे आर रिलीज्ड इन वेरी स्मॉल प्रपोर्शन, राइट? एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल यहां से ये रिलीज होते हैं, तो उसकी साइट ऑफ एक्शन क्या होगी, ओवर हियर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट. सो दिस इज, दे आर फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज्ड, एंड दिस इज साइट ऑफ एक्शन. उसको यहां पे आके काम करना है. एम आई क्लियर? सो दीज आर some points about your phytohormones, or generally hormones you can say. They are small chemical which are released in very less quantity, minute quantity, right? And the site of secretion and site of action are different. एक जगह से वो secrete होंगे, दूसरी जगह पे वो act करेंगे. Okay, I hope you understood this really very well. Now let's start with your phytohormones which are present in plants. Okay, so here I am writing. First one is your auxin. First hormone क्या है बच्चों? Auxin है. देखो, वैसे you can classify this plant hormones into two categories. Number one is your plant growth regulators, and second one is your plant growth inhibitor. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? Number one, over here I am writing. Number one is your plant growth promoters, rather than regulators I am writing promoters, right? Which promotes growth, जो growth कराए, right? So इसके अंदर first आएगा आपका, that is your auxin. Auxin is responsible for growth, I can say. They are responsible for growth. अभी मैंने आपको एक एक्टिविटी समझाई. What you are going to take? You are going to take a flask. मान लीजिए ये flask है, right? This flask is filled with water. इसके ऊपर मैंने यहाँ पे mesh रखी है, okay? And ये mesh के ऊपर मैंने क्या रखा था बच्चों? A seedling. Seedling मतलब it is having your, ये root है, and ये क्या है बच्चों? Shoot है. Are you people getting my point? Yes or no? Yes. What you are going to do? You are going to keep in, ये cardboard है. What is this? This is a cardboard which is open from one side. एक side से वो open है, and you are going to keep this in such a way that it faces, the open part of cardboard faces sun. After some day, what you are going to notice, the part of shoot is going to bend towards sun. Is going to bend towards sun. What is the reason for the same? The reason is your auxin. देखो क्या होता है. The portion of tip. Okay, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए auxin present कहाँ पे होता है. These auxins are present on shoot tip. For your explanation, देखो ये है आपका shoot. मान लीजिए this is your shoot, and मानो ये auxin है. Shoot tip पे, can you see this dotted structure? This is called as your auxin. इसको क्या कहते हैं आप? auxin कहते हैं. अब देखो ये auxin जो है is light sensitive. वो कैसा होता है?
लाइट सेंसिटिव, अगर इफ इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट, राइट, तो वो उससे पीछा छुड़ाने लगेगा, राइट, इट विल मूव अवे इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। चलो नहीं समझ में आया, यहां से आपकी सनलाइट आ रही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यस और नो। तो ये ऑक्सिन क्या करेगा, वॉट दिस ऑक्सिन विल डू, फ्रॉम टिप इट इज गोइंग टू मूव अवे, मतलब वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। कैन यू सी दिस, यस और नो। ये फेस पे सनलाइट पहुंची तो वो ऑपोजिट फेस पे आ गया, इट इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम सनलाइट। कैन यू सी दिस, यस और नो। ये फेस से वो ये फेस पे आ गया। नाउ एज यू नो दैट दिस इज ग्रोथ प्रमोटर, राइट, तो यहां पे जो सेल्स होंगे ना ऑन दिस साइड, चलो दिस इज योर साइड ए, दिस इज योर साइड बी, ओके, सनलाइट साइड बी पे आया तो ऑक्सीजन कहां पे भागा, पीछा छोड़ा के कहां पे भागा, साइड ए पे। अब ये कैसा है, ग्रोथ प्रमोटर है, तो ए साइड पे वो क्या करेगा, जो सेल्स यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, वो सेल्स को इलोंगेट करता है, वो सेल की साइज बढ़ाता है। साइड ए पे सेल की साइज उसने बढ़ाई, बी वैसे का वैसा, बी वैसे का वैसा, एज यू कैन सी, यस और नो। दिस इज ऑल योर सेल्स। ये क्या है बच्चों, इफ आई एम सेइंग योर शूट, मतलब व्हाट इज इट, इट इज मेड अप ऑफ सेल, यस और नो, यस। अब मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन प्रेजेंट कहां पे होता है, आप मुझे बताओ, टिप पे प्रेजेंट होता है। सनलाइट किस तरफ है, बी साइड पे है, तो सिंस इट इज लाइट सेंसिटिव वो दौड़ेगा, राइट, अपना पीछा छुड़ाएगा फ्रॉम सनलाइट। किस तरफ आ गया, साइड ए पे आ पहुंचा। अब साइड ए पे वो क्या करेगा, सेल साइज इंक्रीज करेगा, सेल साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शूट इज गोइंग टू बैंड, योर शूट इज गोइंग टू बैंड। एम आई क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस रियली वेरी वेल। बैंड क्यों होता है, ठीक है, आई बात समझ। देखो ये है आपका शूट, ये है आपका शूट, इस तरफ है सनलाइट, ऑक्सीजन कहां पे होगा, ए साइड पे आ जाएगा, यस और नो, यस। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटर है ना, तो वो सेल साइज इंक्रीज करता है, तो ये इसका ग्रोथ हो रहा है, तो आपको शूट कैसा दिखेगा, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, ठीक है, ये ऑक्सीजन आपको समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, सेकेंड ग्रोथ प्रमोटर is your gibberellins, ठीक है। अगेन जिब्रेलिन का फंक्शन कैसा होता है, सेम एज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एनलार्जमेंट, सेल बड़ा करेगा, ये इतना सेल है तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड ग्रोथ प्रमोटर इज योर साइटोकाइनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसका प्रपोर्शन कहां पे ज्यादा होगा, दो सेल हु आर अंडरगोइंग सेल डिवीजन। टू बी मोर स्पेसिफिक, इट इज मोर इन फ्रूट्स एंड इट इज मोर इन सीड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अब सेकेंड आई एम राइटिंग ओवर हियर, ओके, चलो ओवर हियर आई एम राइटिंग, नहीं यहाँ पे सेकेंड वन क्या होगा आपका, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इसके अंदर दो आते हैं, नंबर वन इज कॉल्ड एज योर एब्सिसिक एसिड, जिसको आप ए बी बोल सकते हो, जिब्रेलिन्स को जीए बोल सकते हो, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ओके। ये क्या आप करेगा, इनहिबिटर है, तो प्लांट ग्रोथ को क्या करेगा, वो प्लांट ग्रोथ को करेगा इनहिबिट। टू बी मोर स्पेसिफिक, इट कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग, ऐसे लीफ है, राइट, से फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है,
ये मस्त इरेक्ट लीफ है, राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑल. ड्यू टू दिस एब्सिसिक एसिड योर लीफ ड्रूप्स, ऐसे नीचे हो जाएंगे, योर लीफ ड्रूप्स, एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय विल्टिंग. ठीक है, आपका एब्सिसिक एसिड है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग. एंड नेक्स्ट कम्स योर इथिलीन. वैसे इथिलीन के दोनों इफेक्ट्स है, प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है, लेकिन वी आर कीपिंग इथिलीन इन दिस केस, राइट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. आप जो फ्रूट्स खाते हो, राइप फ्रूट्स, वो राइप कैसे हुए हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ एन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कॉल्ड एज योर इथिलीन. ओके, अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ रिटार्डेशन एंड ऑल. एम आई क्लियर? तो भाई देखो वापस से एक बार, ये जो इथिलीन है उनकी दोनों एक्शन है, प्रमोटिंग भी है, इनहिबिटिंग भी है, बट जनरली वी आर कीपिंग दिस इथिलीन इन इनहिबिटर. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. प्रमोटर 3, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इनहिबिटर 2, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो रियली वेरी वेल. Thank you very much.